एक सेकंड। तो क्रिप्टो में तो सबसे बड़ा कम्युनिटी है। जी, तो वही है। कम्युनिटी के ऊपर क्रिप्टो ही बढ़ता घटता है। हम्म। और बिल्कुल। दूसरी बात है, कंपनी को कोई अफेक्ट करने वाला तो कोई है नहीं, डिसेंट्रलाइज है। हम्म। खुद पूरा डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटी। जी। ये 2.5 महीने में कम्युनिटी कितना हो गया? हम्म। लगभग 1.5 लाख। नितिन, आपके ना 1.5 लाख से प्लीज ज्यादा। म्यूट कर लीजिए। जाएंगे ना। हम्म। उदा इसलिए उदा नमस्कार दोस्तों, आज के इस जूम टेक्निकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो है हम आप लोगों को हमारे प्रोजेक्ट की जो टेक्निकल जानकारियां हैं वो आप लोगों को उपलब्ध करवाने वाले हैं। और हमारे बीच में जो है मार्कस आ चुके हैं और हमें जो है बहुत सारी जानकारियां जो देने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, ध्यानपूर्वक जानिएगा, क्योंकि ये सारी जानकारियां आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट हैं।
और इस जानकारियों के अभाव में ही जो है हमें बिजनेस करने में परेशानी आती है मार्केट में। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं, आप लीडर्स जो हैं, आप हमारे पिलर्स हैं, तो आप जो हैं उन्हें इनवाइट कीजिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि जब वो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे तभी वो सारी जानकारियाँ वो ले पाएंगे। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि इस जानकारियों को जो है जो हम आज आप लोगों को देने वाले हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और आज जब जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे हमारी टोकनॉमिक्स के बारे में, यानी कि हमारा जो वेबकी का वाइट पेपर है उसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीक में हम उस पार्ट 2 को जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज इस पार्ट 1 में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो हमारा टोकनॉमिक्स है। तो मार्कस जो है मैं उनको यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सो मार्कस, आई वुड लाइक टू वेलकम यू है। सो प्लीज प्रोसीड। Okay. A very good evening to everyone. Okay. Today we are going to talk about the tokenomics of WebKey. So I believe a lot of people that you guys read through like our PowerPoint slides. Okay. So I'm going to share my screen. Hold on for a second. Okay. तो दोस्तों, मार्कस जो है हमसे वेबकी के वाइट पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो अपनी स्क्रीन है इसको ये शेयर करेंगे आप लोगों से। Okay. So this one is our PowerPoint slides. We are going to talk about the token allocation. So there will be a total supply 210 million of W key W key and also W key DAO. So our token name is W key DAO. So the total supply is 210 million. So this is the distribution. 10%, which is the initial team, the foundation. So all this foundation, tech team, everyone. So 21 million of W key DAO. 25%, which is 52.5 million. This is for all this academic financing, everything. Okay, and 10% is for ecosystem, like strategic cooperation with other token or whatsoever. And 55%, this is used for our mobile phone sales, community promotion, like airdrops, ecological interaction, liquidity mining, everyone's stacking income from this 55%. Okay. So some of you, maybe you think that, oh, 210 million and then distribute only 55%, 115 million, it will finish very fast. Is it? Anyone thinks like that? I believe that everyone will think like 150 million will finish very fast. Oh yeah, sorry. Nitin, you want to translate, right? Yeah, I want to translate also. Oh, And sorry. Marcus, like for example, if 10% belongs to initial team like foundation and team, so Mhm. how do you explain? How do you explain in detail like this initial team foundation means what? Okay, the developer teams and then the foundation like Anubi Foundation, because Anubi Foundation already invested in WebKey. Mm-hmm. I will talk about later on Anubi Pro on Anubi invested in which few projects. Okay, Okay. so this 21 million tokens is being assigned to the foundation, right? Yes. So they can use this token like for the selling, for example, like we are using it in the DeFi. So anytime they can sell it out or not? This one, like example, for foundation, they do have one account, and that one is the top account. So they also need to build up the, like they need to grow the sales, like they earn from the marketing plan, like that reward and everything. Okay, so this is Mm. like by smart contract. Yes, by smart contract. Okay. अ, तो दोस्तों जो हमारा जो 10% टोकन आपको दिख रहा है जो टोकनॉमिक्स के तहत है, इसमें 21 मिलियन जो है इनिशियल टीम यानी कि जो फाउंडेशन है अनुबीर फाउंडेशन और जो उनका टीम है उनके लिए असाइन है। और
25% जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के लिए है, जो कि 52.5 मिलियन बनता है। और 10% जो है हमारा इकोसिस्टम स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन और स्कोप के लिए जो है इन्होंने बनाया है। और 55% जो है ये आपके जो एयर ड्रॉप्स हैं, फ़ोन के जो आपको एयर ड्रॉप्स मिलने वाले हैं, हमारे कम्युनिटी के जो प्रमोशंस हैं उसके लिए जो है ये असाइन किया गया है, चाहे उसके अंदर हमारा लिक्विडिटी माइनिंग भी है जो इंक्लूड है। तो टोटल जो है ये 115.5 मिलियन जो है इसके लिए असाइन किया गया है। Okay. So now everyone, when you get WKey DAO. So WKey DAO is a decentralized platform whereby WebKey we are a decentralized platform. But upcoming, if we want to list in all these centralized exchange such as Bybit, OKEX, Binance, even though Binance, we need a token whereby it can list on all these big exchanges. So we will have a token called WKey. WKEY. So this WKEY you can exchange with WKey DAO. It's 1-to-1. So when you exchange, it will be listed on Binance, Bybit, OKEX, and so on and so forth. So once it is listed on this all this big exchange, then actually you can do transaction in like Bybit, OKEX, and so on and so forth. So how much percentage will be used to list in SEX? It will use in the financial institution, the academic financing. So they Okay, will list it. 25%. Correct. ऑलराइट। तो दोस्तों All this जो listing हमारा fee. ऑलराइट, तो दोस्तों जो ये हमारा 25% का जो टोकनॉमिक्स है जिसका नाम डब्ल्यू की होगा, हमारा ये सेक्स के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जो टॉप 10 एक्सचेंजेस होंगे वहां पर इसको लिस्टिंग किया जाएगा। तो उसी के लिए अभी जो है तैयारी चल रही है, इनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो इसी के मिड में 2025 के मिड में जो है इस लिस्टिंग को जो है किया जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि हम इसे 1:1 में जो है स्वैपिंग के माध्यम से उस टोकन को हम चाहें तो स्वैप कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा डिफाई के अंदर जो टोकन यूज होगा उसको हम 1:1 के फॉर्मूला के तहत हम उसको स्वैप कर सकते हैं। यानी कि कल को हमें अगर वहां पर ये डब्ल्यू की टोकन चाहिए जो हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होगा, तो हम अपने इस टोकन से उस टोकन को स्वैप कर पाएंगे 1:1 में। Okay. So this is the allocation for WebKey, and this is the details. So 10% which is allocated to the initial team, like technical and operation team, like as I said. Then another 10% to the ecosystem, 21 million token used for strategic partnership, exchange, listing, and everything. Okay, then institution 25%. Okay, the fund remaining, okay, will be burned. Okay, then you translate first. ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टोकनॉमिक्स को है थोड़ा सा डिटेल में जो है आप लोगों को जो है बताया गया है हमारे इस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 10% जो है यानी कि जो 21 मिलियन टोकन है वो इनिशियल टीम यानी कि जो टेक्निकल है ऑपरेशनल टीम है उसको असाइन किया गया है। और 10% जो हमारा है आपका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए हमारी एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए, तो उसको जो है इसको इस्तेमाल किया गया है इकोसिस्टम के अंदर। और 25% जो है यानी कि 52.5 मिलियन टोकन जो है ये फंडिंग टारगेट जो टारगेट्स हैं वो मीट नहीं होते, तो जो टोकन्स हैं उसको बर्न किया जाएगा, जो हमारे रिमेनिंग टोकन्स रहेंगे जो जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है उसके तहत। Okay. So another 25% is the institution financing, and then afterwards, airdrop mining 55%. Like everyone's second income is from this 55%. तो जो हमारा एयर ड्रॉप और माइनिंग का है उसके लिए ये 55% का जो है टोकन्स को एलोकेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे एयर ड्रॉप्स फोन के तहत आप लोगों को असाइन किए गए हैं वो सब एयर ड्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं। दूसरा हमारा जो लिक्विडिटी माइनिंग है और जो हमारी कम्युनिटी प्रमोशंस हैं उसके अंदर ये सारे टोकन जो हैं असाइन किए गए हैं। यानी कि जो हमारा अभी सिस्टम इनिशिएट हो रहा है उसके अंदर ये टोकन्स को इनिशिएट किया गया है, जो कि हमारा 55% ऑफ जो हमारी टोकनॉमिक्स है। Okay. So for the 10% of foundation, there will be issuance rules, like the team token of 21 million. It will be subjected to 36 month, like it will release day by day within 36 months, which means it's about 3 years. So it will release so that also the foundation and also the tech team, operation team,
they won't go and dump the token. तो क्या so how the can you explain it once again? Okay, it will be released like total is 36 months. 36 months, which means that it's about 3 years. So within these 3 years, every day it will release a little bit, a little bit, a little bit. So that the operation team and also the technical team, they won't go and dump WT down. तो दोस्तों इसके अंदर जो टोकनॉमिक्स में डिजाइन किया गया है, जो कि हमारा इनिशियल टीम फाउंडेशन के लिए जो दिया गया है, उसका जो है 36 मंथ्स के पीरियड के लिए असाइन किया गया है। यानी कि डेली थोड़ा 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 करके जो है इन लोगों को इनिशिएट किया गया है, ताकि कोई भी इसके अंदर डंप ना कर पाए प्राइस को। तो इस वजह से इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिजाइन किया गया है। Okay. So another one is that we have the you see like the airdrop mining 55%. So liquidity mining this 150 million tokens. Treasury bond minting how much, and then we have what, and then after that liquidity pool mining like LP bonds, and then our pool purchasing staking. So if you want to actually like take all what distribute 115 million of token to everyone, it will take a long time. तो Nitin? दोस्तों इसके अंदर जो 55% का जो हमारा टोकन कैप है, जो कि हमारा 115.5 मिलियन टोकन का है, तो जो हमारा डब्ल्यू की दाव टोकन है, अगर लिक्विडिटी माइनिंग के थ्रू अगर ये दिया जाता है तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड जो है लगता है। तो यानी कि आप इसे मान सकते हैं कि कई साल जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट होने में लग जाएंगे। तो उस हिसाब से जो है ये हमारा जो है 115.5 मिलियन टोकन जो है असाइन किया गया है लिक्विडिटी माइनिंग के तहत। Okay. So example like you see Bitcoin total supply is 21 million. It took about more than 10 years. I think Bitcoin is like 10 years. So more than 10 years, like if you want to take all like mine all Bitcoin, it will take so many years to finish up 21 million. But for us, we have 115 million. So that's why if you want to actually mine all our WT down, it will take a very long time. So don't you worry. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन की माइनिंग के लिए जो उसके 21 मिलियन टोकन्स हैं, उसकी माइनिंग के लिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले लगभग 15 सालों से जो है हो रहा है, लेकिन उसको काफ़ी बड़ा समय जो है लगने वाला है उस 21 मिलियन को। तो आप उसके जरिए जान सकते हैं कि हमारा जो 115.5 मिलियन टोकन जो है वो कितने समय में जो है ये इनिशिएट होंगे। Okay. So our W key DAO and also W key is a very unique tokenomics model because we are using dual token cycle and also we will release both our token into different types of exchange. W key will go to centralized exchange. W key DAO will go to decentralized exchange. It will only do like that. It won't like W key DAO list on Binance. No. Okay. तो दोस्तों यहाँ पर जो है डुअल टोकन साइकिल को जो है पहली बार टोकनॉमिक्स में इस्तेमाल किया गया है, जो कि वेबकी के द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया है। तो ये डुअल टोकन साइकिल में क्या होता है कि आपका जो सेम टोकन है वो डिफरेंट नेम से होगा। जैसे वेबकी दाओ जो है वो हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएगा, और जो हमारा वेबकी टोकन है वो हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाने वाला है। तो ये दो पैरेलल टोकन होंगे, लेकिन ये इंटरलिंक्ड होंगे, तो इसे हम डुअल टोकन साइकिल बोलते हैं। तो ये डुअल टोकन साइकिल के तहत जो है इस टोकन को डिजाइन किया गया है, यानी कि एक एडवांस वर्जन जो है टोकन का आप लोगों के सामने पेश किया गया है वेबकी के द्वारा। Okay, so dual token cycle will lead to a dual market flow, which means that people from Binance they buy W key, then afterwards they found that this token is very interesting. They can actually go switch it to W key DAO. Then they can actually join our program. They can come into WebKey. So this is how a dual token cycle works. तो दोस्तों ये जो डुअल टोकन साइकिल है ये कैसे वर्क करती है मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो टोकन है बाइनेंस पे ये आने वाले समय में लिस्ट होगा, तो जब लोग जो हमारी कम्युनिटी, एक नई कम्युनिटी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो वो भी कल को जब इस टोकन के बारे में जानेगी तो वो
डब्ल्यू की दाओ के टोकन के बारे में भी जानने वाली है। तो उससे क्या होगा, जो वहाँ कम्युनिटी जो हमारी डेवलप होने वाली है, तो वहाँ से भी कम्युनिटी शिफ्ट होके हमारे वेब की दाओ टोकन में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इंटरलिंक टोकन है। क्योंकि उन्हें जब ये टोकनॉमिक्स समझ में आएगी कि वेब की दाव भी जो है इसके साथ इंटरलिंक्ड है, तो उसके जरिए जो है हमें ये फायदा होने वाला है कि वो कम्युनिटी जो है ओपन मार्केट से, जो कम्युनिटी हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से जुड़ने वाली है, तो वो कम्युनिटी भी हमारे साथ आने वाले समय में शामिल होने वाली है। Okay. So this is the power of dual token cycle, and also it will flow in dual markets. So like exchange between exchanges, centralized and decentralized, they can actually switch like as they like. This is a way to channel public all these people to come in. They allow a lot of different types of investors to come in. तो दोस्तों, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं ये डुअल टोकन साइकिल जो है हमारे लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट इसको बनाने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में जब ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा और टॉप 10 एक्सचेंजेस में लिस्ट होगा, तो उस समय ये स्विच कर पाएंगे आपस में कि अगर वेब की दाओ जो है डब्ल्यू की को लेना चाहता है, तो वो इंटरलिंक्ड है, तो उसको 1:1 फॉर्मूला से जो है आप ले सकते हैं। सेम जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हमारे साथ जो कम्युनिटी जुड़ने वाली है, वो कम्युनिटी जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसके अंदर जब आएंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो ओपन मार्केट रहती है, तो उसमें कितने टाइप के इन्वेस्टर्स जो है इंक्लूड होते हैं जब उन्हें टोकन की टोकनॉमिक्स समझ में आती है। तो जब वो ओपन मार्केट से हमारे साथ वो कम्युनिटी जुड़ेगी, तो ये टोकन कहाँ पहुंचने वाला है आने वाले समय में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ये डुअल टोकन साइकिल ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके तहत आप आने वाले समय में देखेंगे जो वेब की जो है मार्केट के अंदर एक मार्केट लीडर के रूप में उभर कर आने वाला है। Okay. So this is the part. Next thing, I'm going to show you the hold on for a second. I go to here. Okay, go to ave.ai. Search the key DAO. Okay. So of course you guys can go through here. So the white paper is here. Okay. So you guys can actually go through because WebKey we have a very special tokenomics called the VE33 tokenomics model. So this model is a very proven successful model because I believe that a lot of people, you guys have already go through a lot of different types of platform. Like okay, example, you go to Anubi.pro. Okay, so this is our Anubi Foundation. So you translate first this one. You go through the white paper. ओके। तो दोस्तों, जो हमारा वाइट पेपर है, जो ये वाइट पेपर है, बहुत ही अगर आप इसको स्टडी करेंगे, थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वेब की बहुत डिफरेंटली जो है डिज़ाइन किया गया है। ये वेब 3 प्रोजेक्ट के अंदर जो है इसको इनिशिएट किया गया है। ये इसके अंदर जो है एक V33 मॉडल जो है डाला गया है या इनिशिएट किया गया है, मैं कहूँगा। तो आप इस मॉडल के तहत जो है इस वाइट पेपर को अगर जानेंगे, तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये VE33 मॉडल कितना सक्सेसफुल मॉडल है। आने वाले समय में आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सफलताएं मिलने वाली हैं, वो सिर्फ इसी मॉडल के तहत ही मिलने वाली हैं, क्योंकि ये मॉडल ऑलरेडी अपने आप में एक प्रूवन मॉडल है, जिसके तहत ऑलरेडी बहुत सारी सफलताएं मार्केट में प्रूव कर चुका है। Okay, so you click white paper, so you can go through all this white paper. You can read it. Okay, so this is a very powerful white paper. You can go through and then you can read through all this white paper because the white paper is a bit long, so that I won't go through one by one. Okay. तो दोस्तों, जब ये वाइट पेपर जो है, जैसा कि मार्कस ने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि आप कहाँ से वाइट पेपर को आप सर्च कर सकते हैं, तो इस वाइट पेपर को आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वाइट पेपर है। जब आप इसको स्टडी करते हैं, इस वाइट पेपर को रीड करते हैं, तो आप हमारे प्रोजेक्ट की डेप्थ तक आप पहुंच सकते हैं, इसकी डेप्थ को आप जान सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो मैं चाहूँगा आप इस वाइट पेपर को आप रीड करिए, स्टडी कीजिए, ताकि जो है आपको हमारे प्रोजेक्ट की डेप्थ, आने वाला हमारा जो भविष्य है वो कितना उज्जवल है, वो आप लोगों को इस वाइट पेपर के तहत पता लगने वाला है। बाकी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां जो आप लोगों को इस वाइट पेपर की हैं, वो आज आप लोगों को मार्कस के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। Okay.
So another thing is that you can go through Anubi. So Anubi already invested a few projects whereby it's a very powerful project as well. So Anubi, the first one they already invested in Cassava. So another one is Origin. So previously, some of the leaders here, maybe you know that Origin, I'm the third biggest team in Origin. Okay, so Origin are having the same economic model as well. And then afterwards, Anubi invested in Gala as well, and also Webkey. तो दोस्तों जो अनुबी फाउंडेशन है वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इन प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि अनुबी ने जो है ओरिजिन की सफलता के पीछे भी अनुबी फाउंडेशन है, जैसा कि दिखाया। ऑलरेडी गाला नाम का एक प्रोजेक्ट है और एक कसावा नाम का प्रोजेक्ट है, वो भी अनुबी फाउंडेशन का पार्ट है। और अब ये जो वेबकी हमारे सामने जो है मार्केट में है वेबकी, तो ये भी अनुबी फाउंडेशन का ही एक पार्ट है। तो ओरिजिन के अंदर भी जो है, जैसा कि इन्होंने बताया कि सेम मॉडल जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, और आज आप ओरिजिन की सफलता को मार्केट में जान सकते हैं, देख सकते हैं कि वो एक अलग लेवल की सफलता जो है हासिल कर चुका है, मार्केट में अपने आप को प्रूव कर चुका है। वो पॉसिबल इसलिए हुआ है, वो संभव इसलिए हुआ है कि जिस मॉडल की मैंने अभी बात की थी, चर्चा की थी, उस मॉडल के तहत ही उसको सफलता हासिल हुई है। Okay, so I do have the informations like Anubi, all this project and WebKey. So you guys can actually read through all this, like the white papers and also how the tokenomics work, and then afterwards the distributions and also including our WebKey Cooper tree. So WebKey Cooper tree is an upgrade of WebKey Pro. So because we found out that WebKey Pro is the specs is too low, so we upgrade WebKey Pro into WebKey Cooper 3. We invested a lot on the development of WebKey Cooper 3. तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वेबकी कूपर 3 जो है अभी लॉन्च हो चुका है बाली इंडोनेशिया में, जैसा कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया गया था। वेबकी कूपर 3 का जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको जो है वेबकी प्रो को अपग्रेड करके जो है वेबकी कूपर 3 डिज़ाइन किया गया है। और अनुबी फाउंडेशन के तहत जो है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वेबकी कूपर 3 के लिए जो है किया गया है, वो सब इस वाइट पेपर में मौजूद है। सारी इसकी जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सॉल्यूशन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसे सभी चीज़ें जो आपको इसके बारे में जानना है वेबकी कूपर 3 के बारे में, वो हमारे वेबकी के वाइट पेपर के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप लोग इसको एक बार रीड कीजिए, ताकि आपको ये सारा जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए इस वाइट पेपर के द्वारा। Okay, so WebKey we do have a Web3 store. This Web3 store is that you can download all these different types of uh, application, like some decentralized application, including some centralized exchange, Binance, Bybit, OKEX, because like a lot of different countries like China, maybe in India, I'm not sure whether India you can download Binance or whatsoever. But here you use our WebKey phone, you are able to download because we have a Web3 store. तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेब थ्री स्टोर, आप इस वेब थ्री स्टोर को जो है इस फोन के माध्यम से ले सकते हैं, जो कि इस फोन के अंदर आपको इंटीग्रेट करके दिया जा रहा है। तो इस स्टोर के तहत जो है वो सारी एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ कंट्रीज में अगर बाइनेंस बैन है, तो आप बाइनेंस भी इस एप्लीकेशन के तहत जो है आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टोर है, इससे वो सारी एप्लीकेशंस भी आप यूज कर पाएंगे जो अलग अलग कंट्रीज में बैंड है। तो वेब थ्री स्टोर जो है आपको हमारे इस फोन के माध्यम से जो है दिया जा रहा है। ये एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर डिजाइन करके दी गई है आप लोगों को इस फोन के माध्यम से। तो जो लोग इस फोन को यूज करेंगे, आप मार्केट जो है इजिली जो है डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो वेब थ्री का ही होने वाला है। Okay. So afterwards, if we link up the phone and also all this from all these user from Web 2 or Web 2.5 into Web 3, you know how big is that market size? Nitin? या Okay. तो दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे हैं, जो हमारा वेब टू और वेब 2.5
से लोग जो हैं शिफ्ट होंगे वेब 3 के अंदर, क्योंकि आने वाला समय हम जानते हैं वेब 3 का ही है। तो धीरे धीरे ये शिफ्टिंग जो है हम हमारे तहत ही हो रही है, क्योंकि अगर वेब 3 के बारे में आज हमें पता है तो धीरे धीरे आप लोगों से ये शेयर करना पसंद करेंगे। तो धीरे धीरे ये कम्युनिटी जो है साइज बढ़ता चला जाएगा। तो आने वाले समय में आप जान सकते हैं ये मार्केट साइज कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी वेब 3 के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, वेब 3 के बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। तो धीरे धीरे ये नॉलेज जो है अपग्रेड होती चली जाएगी और धीरे धीरे ये नॉलेज कॉमन लोगों तक भी पहुंचती चली जाएगी। तो आप ये जान सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट जो है इसका बन सकता है। Okay. So upcoming, we will have our phone being distributed. So approximately about the end of February or the starting of March. So upcoming, a lot of good news will come. So I hope that everyone start building your own team, and that is all of my sharing. Thank you. तो दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ जो है आप लोगों को हम देने वाले हैं, क्योंकि फ़ोन जो है हमें उपलब्ध होने वाला है। जो लोग भी फ़ोन ऑर्डर कर चुके हैं या जो लोग फ़ोन ऑर्डर कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैक्सिमम मार्च फर्स्ट वीक तक जो है ये फ़ोन्स जो है पहुंचने वाले हैं, उन तक ये फ़ोन पहुंच जाएंगे मार्च के फर्स्ट वीक तक, ऐसा इन्फॉर्म हमें किया गया है। तो दोस्तों अब जो है ये मार्केट बहुत तेजी से जो है आने वाले समय में आप देखेंगे एक मोमेंटम फेस क्रिएट होने वाला है। और जो लोग भी अपनी अपनी टीम्स को डेवलप कर रहे हैं आने वाले समय में वो सभी लोग जो हैं बहुत अच्छी सफलता जो यहाँ से लेने वाले हैं, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो चुके हैं जो एक बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए जो है आज आप लोगों को हमने ये बताने की कोशिश की है, जो हमारा वाइट पेपर है अगर आप उसको रीड आउट करते हैं, उसको डेप्थ में जाकर स्टडी करते हैं, तो आप ये जान पाएंगे कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो चुके हैं और कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी के तहत हम विकास करने जा रहे हैं जो कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। हम कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है या हम कोई पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के तहत जो है हम इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इसी टेक्नोलॉजी का होने वाला है। डीपिन के बारे में आप इस राइट पेपर के बारे में जानेंगे, जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो कुछ हमने बेसिक जानकारियां जो टोकनॉमिक्स के बारे में थी वो आप लोगों को आज उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। तो मार्कस का हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर हर संडे जो है अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं और हमें ये टेक्निकल जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। तो अभी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस जो हैं आप हमें कर सकते हैं। तो आप जो है मैं चैट जो है होस्ट के लिए ओपन कर रहा हूँ, होस्ट एंड को होस्ट के लिए चैट ओपन रहेगा, तो आप अपने चैट के माध्यम से जो है हमें ये क्वेश्चंस आप कर Hmm. पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए जो है ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप चैट के माध्यम से ये क्वेश्चंस हमसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो चैट के माध्यम से आप डाल दीजिए और हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं आप लोगों को दे पाएं। जो आज हमारा सेशन रहा है उसके अंतर्गत अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई मार्केट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप हमसे कर सकते हैं, क्योंकि संडे का जो हमारा सेशन रहता है वो हमारा टेक्निकल सेशन रहता है और हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है। तो ये कुछ समय है आप लोगों के लिए जो डिजाइन किया गया है क्वेश्चन आंसर के लिए। सो मार्कस देयर विल बी सम क्वेश्चंस, सो आई जस्ट Okay. questions that they can message us in the chat box. So anyone Okay. has a question, they can put their questions. Okay. Yeah. तो दोस्तों आप लोग अपने क्वेश्चंस को हमें चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो प्लीज कोई भी क्वेश्चंस है हमें करिए आप, ताकि हम उसके आंसर्स आपको दे पाएं। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, हमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी में भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसको ट्रांसलेट करके मार्कस को बता सकता हूँ। So there is a question, Marcus, that how much W key DAO rate can be in future? Okay.
जी This is all depends on market. It doesn't depends on what I say. If I say it will go up to until like same price as Bitcoin, I'm bullshitting. Okay. जी। तो दोस्तों ये सब ओपन मार्केट क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि ओपन मार्केट है तो रेट का हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। क्योंकि ओपन मार्केट में आप आज़ाद हैं बाय और सेलिंग पे। अगर ये ज़्यादा बाइंग होती है तो हमारा जो रेट है वो ऊपर जाता है, अगर ये ज़्यादा सेलिंग होती है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हमारा रेट नीचे जाता है। सो देयर इज ए क्वेश्चन मार्कस, व्हाई वी शुड बिलीव ऑन वेब की। Hmm. Okay. WebKey is a decentralized platform whereby no one is going to control your withdrawal. Like if you want to take out your capital, no one is going to control. But we only educate everyone. If you want to sell, sell in small amount. Maximum 10 WK down within 50 minutes. You don't mess with the price. You don't sell big amount, because if you sell big amount, you will earn lesser. Like example, if you want to sell like $1,000 worth of WK down, but if you sell in one transaction, maybe you only get 900. But if you sell slowly, eventually you will get about 950. ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमसे क्वेश्चन किया है कि आपको वेब की पर भरोसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक वेब थ्री प्रोजेक्ट है, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जहां पर आपके चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में दिया गया है, यानी कि आपके फंड्स का कंट्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि आप कभी भी इसे बाय कर सकते हैं, कभी भी आप सेल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म ऐड किए गए हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटी सेशन के माध्यम से बताए जाते हैं, चाहे वो हमारा बर्निंग मैकेनिज्म है, चाहे वो हमारा टर्बाइन मैकेनिज्म है, चाहे वो हमारा ट्रेजरी सिस्टम है, तो ये जब आप जानेंगे, ये मैकेनिज्म आप समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा ना तो हमारा टोकन बहुत तेजी से पंप हो सकता है, ना ही हमारा टोकन तेजी से डंप हो सकता है। तो यहाँ आप एक तरह से अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ओपन मार्केट में हैं, यहाँ कोई मैनिपुलेशन आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को वो टेक्निकल जानकारियां उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप ये जान पाएं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें कोई किसी तरह की मैनिपुलेशन मौजूद नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, तो जब कम्युनिटी मिलकर काम करती है तब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेस हासिल करते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी को जो है एजुकेट और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो वही एजुकेशन और वही अवेयरनेस जो है आप लोगों को इस टेक्निकल सेशन के माध्यम से हम बार बार बताने की कोशिश करते हैं या उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एजुकेटेड होंगे, आप अवेयर होंगे रियल प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि मार्केट में मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोगों को ये नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, आपकी नॉलेज को अपग्रेड करना ज़रूरी है कि रियल प्रोजेक्ट और स्कैम प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो जब आप ये जान जाते हैं, तो आपको जब सही गलत का अनुभव हो जाता है, तब आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो या ना हो, लेकिन आपको ये जानकारी ज़रूर हो जाएगी कि आने वाले समय में कि रियल प्रोजेक्ट कौन से हैं और स्कैम प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। नेक्स्ट Okay. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टेक्स। सो मार्कस ही आस्क व्हाट इज टेक्स। Decentralized exchange like Uniswap, Pancake, QuickSwap, all this with a name of SWAP, swap. This is decentralized exchange. Like Binance, Bybit, Huobi, HTX. This is all centralized exchange. CEX. No, no, he asked text, text, TAX, Yeah, I know. text. DEX, No, no, DEX, not Dex. T for tomato. TEX. TAX, text mean maybe he's asking about the charging text in the system. That is, Oh, yeah, that one is a minting tax. If you yes, mint, like there will be a taxation, but that one you can waive it. right. तो दोस्तों जो ये सिस्टम है, ये एक मिंटिंग टैक्स के रूप में जो है आप लोगों को दिया गया है हमारे सिस्टम में। तो उसको आप वेव कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। अगर वो टैक्स आप बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको 15 डायरेक्ट जो आपको बताया गया है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, 15 डायरेक्ट, और आपका जो खुद का जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज जैसे आप करते हैं, तो आप इस टैक्स से बच सकते हैं। तो आप इस टैक्स को वेव ऑफ कर सकते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन है। तो ये एक मिंटिंग टैक्स है, ये आपको समझने की जरूरत है। Okay. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
this token can go below the $5. No, it If won't go. $5, yeah, it's like, Okay, price will go up and down, but our base is $1. It won't go below $1. तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है हमारे जो मैकेनिज्म है, अगर कम्युनिटी जो है इसको लगातार सपोर्ट करती है, हमारा टोकन जो है, अगर आप इस मैकेनिज्म को समझेंगे, जो हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड का मैकेनिज्म है, जो हमारे लिक्विडिटी पूल को सपोर्ट करता है, तो अगर हमारी कम्युनिटी लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए लिक्विडिटी पूल को सपोर्ट करती है, और जो टरबाइन मैकेनिज्म है उसके जरिए अगर हम मिलकर जो है वो टरबाइन मैकेनिज्म को जानकर समझकर जो है यूज करते हैं, तब आप पाएंगे कि ये प्राइस जो है हमारा नीचे जाने वाला जो है वो इतना इजीली नीचे जाने वाला नहीं है। अगर कम्युनिटी लगातार सपोर्ट करती रहेगी, जैसा कि आप हमारे प्रोजेक्ट जो है ओरिजिन, जो अभी आपको बताया गया था, उसके अंदर आप देख सकते हैं जब ये मैकेनिज्म वहां पर इम्प्लीमेंट किए गए, तो वहां पर जो लिक्विडिटी पूल है वो 2 मिलियन से 26 मिलियन तक आज पहुंच चुका है। वो क्यों संभव हो पाया? क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है अवेयर हुई, एजुकेटेड हुई, तो उन्होंने लिक्विडिटी पूल को सपोर्ट किया। क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जो हम आपको बार बार बताते हैं। तो कम्युनिटी जैसे ही अवेयर और एजुकेटेड होती है तो वो लगातार सपोर्ट करती है। क्योंकि जब आपको ये कैलकुलेशंस, ये फॉर्मूला समझ में आ जाते हैं कि ये हमारा प्राइस नीचे क्यों जाता है या ये ऊपर क्यों जाता है और ये कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पंपिंग डंपिंग वाला कोई रूल नहीं है कि कोई ओनर वहां पर या कोई एडमिन है जो उसको पंप करेगा या उसको डंप कर देगा। यहाँ पर सब कुछ कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है कि कम्युनिटी अगर उसको लगातार सपोर्ट करेगी और कम्युनिटी हमारी बढ़ती रहेगी, तो ये प्राइस जो है आप देखेंगे स्टेबल है या फिर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अगर कम्युनिटी अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अगर वो पैनिक सेलिंग का शिकार होती है, तो ये प्राइस नीचे जाने वाला है। लेकिन नीचे जाने के लिए भी जो है मैकेनिज्म इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली जो है इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो उस मैकेनिज्म की वजह से अगर ये नीचे भी जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके ही ये नीचे जाने वाला है। लेकिन हमें जो है पावरफुल कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत है। जब हम पावरफुल कम्युनिटी बनाएंगे, तब हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये सक्सेस होगा। तो ये दोस्तों हमारे हाथ में है, तो उसके लिए हमें अपनी कम्युनिटी को अवेयर करना है, एजुकेट करना है। जितना ज़्यादा हम एजुकेट एंड अवेयर करेंगे, उतना ही हमारी कम्युनिटी पावरफुल होगी, उतना ही हमारा एलपी पूल पावरफुल होगा और उतना ही हमारा टोकन स्ट्रांग होगा। So the next question, Marcus, the price of shares are significantly decreasing. So that Mm-hmm. how can we explain to the investor that they are decreasing? What again? The price of the token is decreasing. So that how can we explain to the investor that they are decreasing? He Okay, means that, yeah. price will go up and down. This is not controlled by one entity. Like if someone sell big amount, then the price will drop and other community will be in panic and then they will follow. That's why we educate everyone to sell small amount because we don't control your withdrawal. We cannot तो control your withdrawal. तो दोस्तों, जैसा कि भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी कम्युनिटी है, अगर वो एजुकेटेड है, अवेयर है, तो हमें क्या है ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आप कभी भी अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट है, तो जितना ज़्यादा हम कम्युनिटी को अवेयर और एजुकेट करेंगे, तो पैनिक सेलिंग जो है वो कम होगी। क्योंकि टोकन का प्राइस डिक्रीज कब करेगा? जब पैनिक सेलिंग होगी या बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग होती है, तभी टोकन का प्राइस जो है डिक्रीज होता है। लेकिन वो डिक्रीज भी जो होता है वो धीरे धीरे नीचे जाता है। लेकिन जब हम अवेयर और एजुकेटेड हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ओरिजिन का एलजीएनएस नाम के टोकन का एग्जांपल दिया है अभी, अगर आप उसके पिछले 2 महीने की स्टडी करेंगे, जब ये बॉन्ड्स के मैकेनिज्म वहां पर इम्प्लीमेंट किए गए, क्योंकि जब वेबकी में ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था बॉन्ड्स के मैकेनिज्म का, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का, तो इसकी सक्सेस को देखते हुए वहां भी इस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उस बॉन्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से उनका जो एलपी पूल मैंने जो बताया है वो काफी स्ट्रांग हो गया। वो स्ट्रांग इसलिए हुआ क्योंकि वहां की कम्युनिटी जो है एजुकेटेड हो गई, अवेयर हो गई। तो एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से जो है वो कम्युनिटी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और आप देखेंगे वो लिक्विडिटी जो 2 मिलियन की लिक्विडिटी थी, 2 मिलियन की लिक्विडिटी 26 मिलियन की लिक्विडिटी पहुंच चुकी है। तो वो 26 मिलियन की लिक्विडिटी तभी पहुंची जब हमने कम्युनिटी को सही से गाइड किया, सही से एजुकेट किया। तो जब वेबकी में भी जब आप अपनी कम्युनिटी को सही से गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो यहाँ भी आप देखेंगे हम जो है काफी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और आने वाले समय में जो है हमारा ये जो टोकन का जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों, आप
को करना बस यही है कि आपको सही जानकारियां लोगों तक देनी है, वास्तविकता जो है लोगों को बतानी है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैसा है, इसका सिस्टम कैसा है, इसके मैकेनिज्म कैसे हैं। और अगर आपको सेल करना है, अगर आपकी कम्युनिटी सेल करना चाहती है, तो आपको उनको यही बार बार बताना है कि आपको छोटे छोटे अमाउंट में हर 15-20 मिनट में बेचना है। अगर आपको 100 टोकन बेचने हैं तो आपको एक साथ सेल आउट नहीं करना है। अगर आप वो 100 टोकन बेचना चाहते हैं तो आप 5-5, 10-10 टोकन करके ही बेचेंगे हर 15 से 20 मिनट के गैप में। जब आप ऐसा करते हैं तब आपका प्राइस जो है आप देखेंगे वो स्टेबल रहता है। तो प्राइस की स्टेबिलिटी रखने के लिए हमें अपनी कम्युनिटी को गाइड और एजुकेट करने की जरूरत है। Okay. राइट। So upcoming, because I have another things to do. So now it's already almost 1 p.m. in Japan. So I'll leave the Zoom and then you guys can continue with it. Okay. ऑलराइट मार्कस। तो Mm. दोस्तों मार्कस जो है अब उनकी तरफ से ये सेशन जो है यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि ऑलरेडी जापान में है ये और वहाँ पर 1 बज चुका है ऑलरेडी। इनका कुछ दूसरा सेशन भी जो है वो इनको लेना है अभी। तो इस वजह से मार्कस जो है अभी इस मीटिंग को अ, अपनी तरफ से यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमारे से कर सकते हैं। अगले 2 से 4 मिनट, 5 मिनट अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सो मार्कस, ओके, यू कैन लीव फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर दिस वंडरफुल सेशन। Mm. And next Sunday, hopefully, we meet again with the new information of WebKey, Mm. right? Okay. All right. Sure. So, thank you. Yeah, Thank thanks, you. Marcus. Okay. Bye bye. Bye. तो दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे, उसके बाद हम इस मीटिंग को विराम देंगे। अगले 2-3 मिनट और हम इस क्वेश्चंस को ले सकते हैं कि अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है। अ, जैसा कि इनका क्वेश्चन है कि जो इन्वेस्टर है वो हमें सुनता है, तो इन्वेस्टर कितना लंबे समय तक होल्ड कर सकता है। तो इसमें आपको कोई होल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टर्स के साथ जो है अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, जिसके तहत जो भी उनका इन्वेस्टिंग अमाउंट है उस स्ट्रैटेजी के तहत, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हर 15 दिन में मुझे अपने प्रॉफिट का 60% विड्रॉल लेना है। तो जो 60% विड्रॉल है उसके तहत जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, और उसका जो आपके इन्वेस्टर का अमाउंट है, हो सकता है वो 4 महीने में, 5 महीने में या 6 महीने में ऑलमोस्ट वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट वो निकाल सकता है। उसके बाद जो उसके प्रॉफिट्स क्रिएट हो रहे हैं वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आप अपने इन्वेस्टर को कैसे आप बिल्ड करना चाहते हैं। तो कल को मार्केट का रिएक्शन जो है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ड्रॉप होता है, तो आपको जैसा कि हम बताते हैं कि एक टोकन आपके लिए 20 से 25 टोकन जो है एक साल में जनरेट कर देता है। तो दोस्तों, आपको हर 12 घंटे में जो है स्टेकिंग के माध्यम से आप लोगों को टोकन भी जनरेट होते हैं। तो अगर आप बॉन्ड्स के थ्रू बाय करते हैं, वहां से भी सेम तरीके से जो है आपको टोकन जनरेट होते हैं। तो जो टोकन्स आपको जनरेट हो रहे हैं वो आपको फोकस रखने की जरूरत है कि आपको हर 12 घंटे में जो है टोकन्स के फॉर्म में जो जनरेशन हो रहा है। तो उससे क्या है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आज आपने इन्वेस्ट किया और आपका प्राइस जो है डिप हुआ, जिसकी वजह से जो है आपको होल्ड करने की जरूरत है, तो थोड़ा समय आप होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने आप को प्रॉफिट में देखते हैं, उस समय जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉफिट्स को भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे मार्केट का रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी, लेकिन हमें कभी भी पैनिक सेलिंग का शिकार नहीं होना है। एंड ऑफ द डे मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइस कितना भी डिप होता है, यहाँ पर आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टोकन के अगर 20 से 25 टोकन जनरेट हो रहे हैं, तो आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, आप लॉस में नहीं रहेंगे। कल को प्राइस कुछ भी रहेगा, अगर आप प्राइस पे फोकस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग का शिकार हो सकते हैं, या आपके जो कम्युनिटी है वो भी पैनिक सेलिंग का शिकार हो सकती है। तो हमें पैनिक सेलिंग से बचने के लिए जो है हमें खुद को भी जो है अवेयर रखना है, खुद को भी एजुकेटेड रखना है, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ द डे आपका लॉस नहीं होने वाला है। एंड ऑफ द डे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके जाएंगे। एक एग्जांपल के तहत अगर मैं बताता हूँ आपको, तो कल को फॉर एग्जांपल आज इसका प्राइस $53-54 का है। तो कल को इसका प्राइस मैं मान लेता हूँ कि अगर एक साल बाद $10 का भी रहता है, तो $10 के साथ अगर मान लो आज मैंने एक टोकन खरीदा है $53 में, तो कल को ये $10 और मेरे पास 20 टोकन है, तो वो 20 टोकन को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पैसे जो है $200 होते हैं। तो एक साल में आपके पास $200 हो गए।
तो आपका पैसा कितना गुना हुआ, 4 गुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एंड ऑफ द डे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, बशर्ते आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है। सिचुएशन कैसी भी क्रिएट होती है, क्योंकि ये मार्केट है, ओपन मार्केट है, तो आपको सिचुएशन जो भी क्रिएट होगी उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट ही जनरेट करेंगे इस प्रोजेक्ट में, लेकिन आपको हो सकता है ये प्रॉफिट कुछ लॉन्ग टर्म में नजर आए, किसी को शॉर्ट टर्म में नजर आए। तो आपको बस पैनिक सेलिंग का शिकार नहीं होना है किसी भी सिचुएशन के अंदर। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। वेबकी का रेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि अभी $53-54 पर जो है ये अभी चल रहा है। और पिछले लगभग आप देख सकते हैं 1.5 पौने 2 महीने से रेट जो है इसी के बीच में ही स्टेबल है। ये 50 तक गया था, लेकिन वापस से जो है ये अभी आप देख सकते हैं 53-54 तक दोबारा जो है ये स्टेबल हुआ है। तो कोई एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करना चाहेंगे। आ, कोई भी एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है अदर कोई क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं। और हम चाहते हैं इसी तरह से हमारा जो कम्युनिटी है वो एजुकेटेड रहे, अवेयर रहे, ताकि हम उनको टेक्निकल जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध करवाते रहें, ताकि आप सभी लोग जो हैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर पाएं। क्योंकि सिर्फ हम इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, जो हमारी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड टेक्निकल जानकारियां भी आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है नॉलेज को अपग्रेड करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किस प्रोजेक्ट के साथ आपको जुड़ना चाहिए और किस प्रोजेक्ट के साथ आपको नहीं जुड़ना चाहिए। तो जब आप लोगों को ऐसा ज्ञान होता है या ऐसी नॉलेज होती है कि कौन से प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट हमारे लिए स्कैम प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है अवेयर हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, और आप जो है अपने पैसे को सही जगह पर ही इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी आप लॉस का शिकार होने से बच जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब हम इस कम्युनिटी को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि हम इस कम्युनिटी को लगातार निरंतरता के साथ बढ़ाते रहेंगे, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप कितने ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और कितने ज़्यादा लोग हमारी वजह से अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं और स्कैम का जो है शिकार नहीं बनने वाले हैं वो लोग। तो जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी उतने ही लोग स्कैम का शिकार कम होंगे। तो दोस्तों, आप लगातार हमारे इस सेशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए, और आ, इस संख्या का विस्तार जो है तेजी से हो, हम ऐसा आशा करते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े लेवल पर इस प्रोजेक्ट का विस्तार होने वाला है, और आप सभी लोग जो हैं हमारे साथ जो एसोसिएटेड हैं या एसोसिएट होने वाले हैं, वो सब लोग यहाँ से एक अच्छे लेवल की सफलता हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस सेशन की समाप्ति करना चाहेंगे, और नेक्स्ट सेशन, टेक्निकल सेशन जो हमारा रहेगा नेक्स्ट संडे को, तो हम नई टेक्निकल जानकारियों के साथ आप लोगों के समक्ष होंगे। हम जो व्हाइट पेपर है, तब तक आप, हम चाहेंगे, हम आपको एक टास्क देते हैं कि नेक्स्ट संडे तक जो है आप इस वेब की के व्हाइट पेपर को आप रीड आउट कीजिए, स्टडी कीजिए, और हम नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है और काफ़ी जानकारियां जो है वेब की के बारे में जानेंगे इस वाइट पेपर के तहत। क्योंकि आज हमने टोकनॉमिक्स के बारे में जाना है, तो नेक्स्ट सेशन में आप जानेंगे और बहुत सारी जानकारियां जो इस वेब की वाइट पेपर के अंदर शामिल की गई हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने लेवल पर इसको स्टडी करें, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को वो जानकारियां उपलब्ध करवाएंगे तो आप लोग आसानी से उसे समझ पाएं, आसानी से ग्रैब कर पाएं। तो दोस्तों, अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। कल आप लोगों से मुलाकात होगी अपॉर्चुनिटी सेशन के माध्यम से। सोमवार से शनिवार हमारा अपॉर्चुनिटी सेशन रहता है ठीक 8:30 बजे,
और संडे को हमारा टेक्निकल सेशन रहता है 8:30 बजे। तो दोस्तों, आप लोगों से अलविदा लेने का समय आ गया है और अब हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं और फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे ठीक 8:30 बजे कल इसी समय। थैंक यू वेरी मच।